तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 41 अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। सभी श्लोक रिपीट करिए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ तस्मात् नियम्य भरतर्षभ नियम्य पाप्मानं प्रजह्येनं आत्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं आत्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्णा। इंग्लिश में पढ़िए प्लीज़। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Purport: the Lord advised Arjuna to regulate the senses from the
very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specifically knowledge of the self. Janam refers to knowledge of self and distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijanam refers the specific knowledge of the spirit soul and knowledge of one's constitutional position and his relationship to the supreme soul. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam, Janam Parama Guhyam में यत विजयनम संवंतितम सहर्षम तद अंजम च ग्रहणा घटिता maya. The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious, being veiled by maya. But such knowledge and specific realization can be understood if it is explained by the Lord Himself. Bhagavad Gita gives us that knowledge, specifically knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. The consciousness is called Krishna consciousness. So from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of Lord cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates, nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. So, from any stage of life or from the time of understanding this urgency, one can begin regulating the senses or in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य: भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञानी की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है: ज्ञानम परम गुहम में यद्विज्ञान समन्वितम तरहस्यम तदसंगम च गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है।
अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होकर तद अनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो उपदेश है अर्जुन को इंद्रियों को संयमित करने का, ये बिना भक्ति किए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम भक्ति नहीं करते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी इंद्रियां, वो हम सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमारी इंद्रियां वास्तविक में भगवान की सेवा करने के लिए बनाई गई है, और भगवान की सेवा नहीं करने के कारण इंद्रियां दूषित हो गई है, अपवित्र हो गई है संसार के संपर्क में आके। प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसके मिश्रण से ही हमारा शरीर बनता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिश्रण से, कफ, पित्त और वात के मिश्रण से ये धातु, ये जो शरीर है ये बनता है। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधि कल्लत्र आदिशु भौम इज्यति यतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचे जनेषु अभिघ्नेषु सएव गोखर। ये श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक था ये, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में से ये श्लोक को बताते हैं हमेशा कि जो व्यक्ति अपने इस 3 धातु के बने शरीर को अपना आत्मा मानता है, और 3 धातु कौन से हैं? कफ, पित्त और वात, और ये 3 गुणों के प्रभाव से बनता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके मिश्रण से बनता है। तो कुछ लोगों की शरीर में बहुत आलस होता है, कुछ लोगों के शरीर बहुत एक्टिव होते हैं, और कुछ लोगों के शरीर में बहुत प्रकाश होता है, ऊर्जा होती है, ज्ञान होता है। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके लक्षण भी कृष्ण भगवान ने बताए गीता में, कि सत्वगुण में शरीर की इंद्रियां सारी चमकती है और उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, और रजोगुण में जो है इंद्रियों में बहुत सारी इच्छाएं होती है और बहुत सारी एक्टिविटी करने की इच्छा होती है, और तमोगुण में बहुत आलस होता है, निद्रा होती है। इस तरह से हमारी इंद्रियां अलग अलग टाइप से एक्टिंग करती है इस संसार में गुणों के अनुसार। और हमारे शरीर में 3 धातु होते हैं, कफ, पित्त और वात। तो आयुर्वेद अगर किसी को पता है, या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप कभी गए हैं, तो वो आपकी नाड़ी चेक करते हैं, और नाड़ी के अंदर वो देखते हैं कि कफ, पित्त और वात का जो संतुलन है वो ठीक है या नहीं है। और अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक करने के लिए दवाई देते हैं, और कुछ मुद्राएं बताते हैं, और कुछ प्राणायाम, श्वास की क्रियाएं बताते हैं, जिससे शरीर में कफ, पित्त और वात का जो मिश्रण है, जो संतुलन है, वो फिर से ठीक हो जाता है। तो सारी बीमारियां इसी के कारण होती है, कफ, पित्त और वात के संतुलन खराब होने से बीमारियां होती है शरीर में। तो पूरा आयुर्वेद इसी पे आधारित है। तो फिर भी ये अपूर्ण है, क्योंकि शरीर जो है वो धातुओं से बना है,
भौतिक धातुओं से बना है, पर वो हमारी आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा शरीर से अलग है, पर हम भक्ति करके अपने शरीर को भी आत्मा का हिस्सा बना सकते हैं, स्पिरिचुअल बना सकते हैं। तो जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो शरीर में विकार आते हैं, कफ पित्त और वात में विकार आते हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। पर जब हम भक्ति करते रहते हैं, शरीर से सेवा करते रहते हैं भगवान की, तो फिर इसमें विकार आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे अंग जो है शरीर के, जितने भी इंद्रियां हैं, जितने अंग हैं, वो सब भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगे रहते हैं। तो उसमें प्राण वायु चलता रहता है, वो कभी उसको कभी मृत्यु आती नहीं है, उसको कभी मृत्यु आती नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में प्राणवायु चलता रहता है जब तक वो ऋषिकेश भगवान की सेवा करता रहता है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक गाड़ी है और गाड़ी का एक पुर्जा है। तो जब तक गाड़ी का पुर्जा गाड़ी से लगा है तो गाड़ी की सफाई होती है, तो पुर्जे की भी सफाई होती है। गाड़ी का मेंटेनेंस होता है तो उस पुर्जे का भी मेंटेनेंस होता है। तो उस पुर्जे को सिर्फ गाड़ी से लगे रहना है और गाड़ी की सेवा करते रहना है, मतलब गाड़ी के अंदर उस पुर्जे का जो काम है वो उसको करते रहना है। तो उसका मेंटेनेंस अपने आप होता है, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से हम भगवान ऋषिकेश का हिस्सा है और हमारा काम है भगवान की सेवा करना। तो जब तक हम भगवान की सेवा करते रहते हैं तो हमारा मेंटेनेंस ऑटोमेटिक होता है। तो इसीलिए भगवान की जो सेवा करते हैं उनको गोपी कहा जाता है। गोपी मतलब कि गोपी मतलब वो अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं, और इसीलिए उनका नाम है गोपी। और भगवान को कहा जाता है गोपी भर्तु। तो कृष्ण भगवान को कहा जाता है गोपियों का पालन करने वाला। तो गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, हमारी जो परंपरा है गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद, ये परंपरा है गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो इसमें गोपी भर्तु मतलब कि जो गोपियों का पालन करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं और उन पे कोई संकट नहीं आने देते, और संकट आने पे पहाड़ तक उठा लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें गोपीजन बनना है। अगर हम गोपीजन बनेंगे तो भगवान हमारी रक्षा के लिए पहाड़ तक उठा लेते हैं और हमें हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन करते हैं और हमें हर तरह से सुखी रखते हैं। तो हमें सिर्फ गोपीजन बनने का प्रयास करना है और गोपियों की सेवक के सेवक का सेवक बनने का ट्राई करना है। तो फिर हमको फिर चिंता नहीं है किसी बात की, भगवान हमारा पालन करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। और हमें इसी चीज़ की चिंता होती है कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हमारी सुरक्षा कैसे होगी। तो वो दोनों जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। तो तभी हमारी इंद्रियां संयमित हो सकती है और तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि गोपियों की, गो मतलब इंद्रियां और गोपी मतलब जो अपनी गोपियों से अपने इंद्रियों से कृष्णा की सेवा करती। तो ये इसीलिए हमें समझना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा के लिए। हाँ, शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और मन को भी इंद्रियों में गिना जाता है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सब मिला के 11 इंद्रियां होती है शरीर में, और सबकी सब भगवान की सेवा में लगी रहनी चाहिए। मन कैसे लग सकता है? नाम लेके, और आपका नाम लेते हैं तो ज़बान भी लग जाती है, माला पे नाम लेते हैं तो आपके हाथ उंगलियां भी लग जाती है, और आप भगवान की विग्रह को देखते हैं तो आपकी आंखें भी लग जाती है, भगवान के नाम को सुनते हैं तो आपके कान भी लग जाते हैं, और भगवान को अर्पित फूल या अगरबत्ती सूंघते हैं तो नाक भी लग जाता है। तो इस तरह से सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती, और हम फिर माया से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। गुणों का जो प्रभाव है, 3 गुणों का जो प्रभाव है, कफ पित्त वात का जो प्रभाव है, ये हमारा शरीर से धीरे धीरे कम होने लगता है और हम धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर जाते हैं। और हमें फिर मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, जरा और मरण, जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मरना, और व्याधि मतलब बीमारी। जरा, व्याधि और मरण, ये 3 चीज़ें सबको होती है क्योंकि वो कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, ऋषिकेश की सेवा नहीं करते हैं। तो जिसके लिए ये शरीर मिला है हमको,
भगवान ऋषिकेश कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है शरीर, पर हम इस शरीर को उसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का उपयोग है उसमें बैठ के आपको कहीं जाना है, पर गाड़ी खरीद के आपने रख दी और उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसको साफ़ भी नहीं किया, उसको मेंटेन भी नहीं किया, तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, जंग लग जाएगा, फिर वो चलाने के योग्य नहीं रहती। तो हमारा जो शरीर है वो भी एक गाड़ी की तरह है। ये शरीर हमको मिला है कृष्णा भगवान की सेवा के लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, उनके बारे में प्रचार करने के लिए, उनके बारे में बोलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। कृष्णा को देखो, कृष्णा को सुनो, कृष्णा की बातें बोलो, कृष्णा को अर्पित फूल सूंघो, कृष्णा के शरीर को स्पर्श करो, कृष्णा के विग्रह को स्पर्श करो। तो इसके लिए इंद्रियां मिली है हमको, 5 इंद्रियां इसी के लिए मिली है। आँखें कृष्णा को देखने के लिए, कान कृष्णा के बारे में सुनने के लिए, ज़बान कृष्ण का नाम लेने के लिए, नाक कृष्ण को ये फूल अर्पित फूल को सूंघने के लिए, और हाथ दिए हैं भगवान का शरीर की सेवा करने के लिए। इस तरह से 5 इंद्रियां और मन भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए, और बाकी जो 5 इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये सब भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति कहा जाता है। ये रूप गोस्वामी ने कहा है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भी ये डिटेल में वर्णन है अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उनके बारे में बोलना, उनको देखना, उनको सुनना, उनके बारे में सुनना, नाम जपना, और भगवान के लिए भोग बनाना, उनके विग्रह की सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवदा भक्ति बोलते हैं इसे। तो इसमें हमें लगे रहना है हमेशा, और हमेशा भगवान के बारे में बोलते रहना है, सुनते रहना है। तो ये बहुत रहस्यमय है, पर जैसे जैसे हम इसको करते हैं तो ये रहस्य खुलता जाता है और हमें धीरे धीरे साक्षात्कार होता है कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के रूप में मेरा एक ही कर्तव्य है, एक ही काम है, कृष्ण का नाम और कृष्ण की सेवा। तो कृष्ण का नाम और कृष्ण की सेवा शरीर और मन और बुद्धि के स्तर पे नहीं होता है, वो आत्मा के स्तर पे होता है। और क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे होता है तो वो कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने तुम्हें आदेश दिया है, ये आदेश 10,000 साल तक चलता रहेगा। तो ये तो इसको कहते हैं ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य मतलब कि जो कभी बदलता नहीं है और चलता रहता है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि हम लोग, कोई वैज्ञानिक कोई थियोरी बनाता है या संविधान में लोग कुछ वाक्य लिखते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, पर वो 5 साल में बदल जाता है। जो वैज्ञानिक जो बातें बोल रहे हैं वो भी बदल जाती है, और जो संविधान में लिखा है वो भी बदल जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म वाक्य नहीं है, वो परम सत्य नहीं है, वो ईश्वर ने नहीं बोला है, भगवान ने नहीं बोला है। अगर भगवान का बोला हुआ एक भी श्लोक वैज्ञानिक या जो संविधान बनाने वाले उन्होंने एक भी श्लोक अगर रख दिया वहाँ पे, तो फिर उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, माम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये सारे जितने भी जीव है इस संसार में सारे मेरे अंश हैं। तो अगर ये एक वाक्य भी संविधान में लिख दिया जाए तो इसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये परम सत्य है, ये सनातन सत्य है, इसको हम करोड़ों साल तक फॉलो कर सकते हैं। वो करोड़ों क्या, हम अनंत समय तक इसको फॉलो कर सकते हैं कि कृष्णा ही मालिक है, हम सब अंश है, हम सबको कृष्णा की सेवा करनी है। तो ये 3 लाइन भी अगर संविधान में लिख दी जाए कि कृष्णा मालिक है, हम सब सेवक हैं, प्रभुपाद जी गुरु हैं, और हमें कृष्णा की सेवा करनी है श्रीला प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। अगर ये 3-4 लाइन भी अगर संविधान में लिख दी जाए तो कम से कम 10,000 साल तक ये चलता रहेगा, और इसमें कोई बदलाव, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ना सरकार बदलेगी, ना संविधान बदलेगा, ना आपको कोई चिंता करनी है। कृष्णा मालिक है, श्रीला प्रभुपाद गुरु हैं, हमें उनके अनुसार सेवा करनी है। तो फिर सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा। करोड़ों लोग, करोड़ों आत्माएं कृष्णा की सेवा कर पाएंगी, और सबका उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा, और 10,000 साल तक ये चलता रहेगा।
तो इसका ये मतलब हुआ कि 10,000 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, आपको इलेक्शन नहीं करना है, आपको राजनीति नहीं करनी है। आप सबको सिर्फ कृष्णा को मानना है और कृष्णा का नाम लेना है। और फिर तो पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, करेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान दे रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वही टैक्स है, वही सब कुछ। तो भगवान का नाम जो लेगा उसको सब कुछ मिलेगा। तो फिर तो ये बहुत अच्छा है। ये संविधान अगर ऐसा बन जाए तो 10,000 साल तक ये चलता रहेगा। और प्रभुपाद जी ने आश्वासन दिया है, गारंटी दी है प्रभुपाद जी ने कि 10,000 साल तक ये चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान चला रहे हैं। तो ये रहस्य क्लियर धीरे धीरे होता जाएगा, आप जितना इसको फॉलो करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम गीता पढ़ रहे हैं, तो जीवन बड़ा आराम से चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा है। और जब तक हम गीता पढ़ते रहेंगे और हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन बड़ा शांति से और अच्छे से गुजरेगा। और हज़ारों लाखों साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमें कभी पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, कृष्णा की तरफ जाना है, प्रभुपाद जी के पीछे चलना है। तो ये हज़ारों लाखों करोड़ों साल तक ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई टेंशन भी नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है कि कुछ बदलना है या हमें कुछ और करना है। एक ही काम करना है, बस भगवान के बारे में बोलना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान को देखना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान का प्रसाद खाना है और भगवान की सेवा करनी है, उनके बारे में प्रचार करना है। ये 5-6 एक्टिविटीज़ जो है इसी में 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो आपको बस अपना जीवन ऐसे ही जीते रहना है। आपके जीवन में जितने भी दिन आएंगे, हर दिन में 24 घंटे आएंगे। आज का 24 घंटा, कल का 24 घंटा, परसों का 24 घंटा, ये 24 घंटे आपको इसी 5-6 एक्टिविटीज़ में करने हैं। सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला करना, भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, आरती करना, प्रचार करना, गीता पढ़ना। हम कोशिश कर रहे हैं दिन में 3 क्लास लेने की। सुबह सुबह भी हम 16 माला का प्रयास करते हैं। तो सुबह उठ के 16 माला करना, भगवद गीता की क्लास अटेंड करना और प्रचार करना भगवान के नाम का, सबको बताना भगवान के बारे में, भक्ति के महत्व के बारे में बताना और लेख लिखना, भगवान के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखना और उसको फॉरवर्ड करना। और आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम लोग कई सारे स्तर पे भगवान की बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये सारे एक्टिविटी रोज़ करते हैं तो आपका पूरा दिन इसी में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे जा रहा है। और फिर आपके शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे समय का असर भी नहीं होगा, आपको मृत्यु ही नहीं आएगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो 16 माला करता है उसको धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि मेरे को मृत्यु ही नहीं हो रही है, मृत्यु को रोक दिया गया है और मैं बुढ़ापा भी नहीं आ रहा है, मृत्यु भी नहीं आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल है। मतलब कुछ लोग इसको मानते नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये हो सकता है। अगर आप प्रभुपाद जी को फॉलो करोगे अच्छे से, उनकी जो आदेश है, प्रभुपाद जी के जो आदेश है, उसको अगर आप कानून की तरह फॉलो करोगे तो फिर आपको दिखने लगेगा कि ये कानून अच्छा है, इससे मेरे को बुढ़ापा भी नहीं आ रहा है, मृत्यु भी नहीं आ रही है और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, लाइफ कैसे चलेगी, भगवान चला रहे हैं, मैं तो नाम ले रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो अब तक भगवान ही चला रहे दुनिया को, जब से दुनिया बनी है करोड़ों साल हो गए हैं और आगे भी करोड़ों साल तक भगवान ही चलाते रहेंगे। तो हमें तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चलाने वाला ऊपर बैठा है, हमें बस उसके आदेश का पालन करना है। और हमें टेंशन नहीं लेना है कि दुनिया कैसे चलेगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, इस बात का हमको टेंशन नहीं लेना है। वो टेंशन भगवान पहले से ले रहे हैं और उसको पूरा भी कर रहे हैं। हमको वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, हमको खाना पचा रहे हैं, हमको अन्न दे रहे हैं, हमको रहने की जगह दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं। तो इस दुनिया की चिंता भगवान को है और भगवान उसका ध्यान भी रख रहे हैं। विष्णु को पालक कहा जाता है, दुनिया का पालन करने वाला। तो भगवान पहले से इस बात की चिंता कर रहे हैं कि दुनिया कैसे चलेगी और कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये चिंता करनी है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं भगवान को याद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान के नाम का प्रचार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसी बात की चिंता करनी है कि आज के दिन में मैंने कितना नाम लिया, कितने मैंने गीता पढ़ी, कितना प्रचार किया, कितने लोगों तक ये बात पहुँचाई मैंने, इसी बात का टेंशन लेना है। तो इस बात का टेंशन कोई लेता नहीं है, जिसका लेना चाहिए उसका टेंशन कोई लेता नहीं है।
और जिस बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए उसका हम लेते हैं टेंशन। जो भगवान ने हमको पहले ही दे रखा है, खाना पीना रहना, ये तो पहले ही दे रखा है हमको, तो उसकी चिंता हम फालतू में करते हैं। और जिस बात की चिंता करनी है कि मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ भगवान का, गीता क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, भगवान की सेवा क्यों नहीं कर रहा हूँ, भगवान का प्रचार क्यों नहीं कर रहा हूँ, इस बात की चिंता करनी है। तो अगर हम सही चीज़ की चिंता करेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी। हम लोग गलत चीज़ की चिंता करते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। भक्ति भी नहीं होती है, संसार में सुख भी नहीं मिलता है, ना माया मिली ना राम। माया भी नहीं मिली और राम भी नहीं मिले, भगवान भी नहीं मिले। माया की हम चिंता करते हैं बट वो तो मिलेगी नहीं कभी, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, वो तो भगवान की है। और भगवान का चिंतन करना चाहिए तो हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम है और हमें सबकी लाइफ में दुख है। अगर हम सही चीज़ की चिंता करेंगे तो फिर हमारे दुख कम हो जाएंगे धीरे धीरे, और फिर हमको आनंद मिलेगा, हैप्पीनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ब्रह्म आनंद है। ब्रह्म आनंद मतलब कि कृष्ण की भक्ति का आनंद। तो वो आनंद तभी मिलेगा जब हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, सेवा करने का प्रयास करेंगे, भगवान का नाम जपने का प्रयास करेंगे, तब हमको असली आनंद मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो हम दुखी रहेंगे हमेशा, और हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो ये इसका तात्पर्य है। यहाँ पे कोई प्रश्न, डाउट, क्वेश्चन कुछ है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं किसी को? नहीं प्रभु जी। ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ लेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि परण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर मनः पस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः यो बुद्धे परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः यो बुद्धे परतस्तु इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः यो बुद्धे परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः
यो ते परदर्शितः। हरे कृष्णा। इसके ऊपर डिस्कशन हम कल करेंगे। इस पे इंग्लिश और हिंदी में कल पढ़ेंगे और डिस्कशन कल करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे रोक देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री